I'll start the recording also. Now, is my paint screen visible, guys? ओके। और अभी एक वर्ड है इंग्लिश का एडजेसेंट, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? जस्ट गो एंड चेक एंड लेट मी नो, गाइस। ओके, सो आंसर क्या आया? यू आर टेलिंग नियर, साइड बाय साइड, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? नियर, साइड बाय, नेक्स्ट। ओके, एनीवन एल्स हैज एनी आंसर अबाउट एडजेसेंट? सो इफ आई हैव थ्री बिल्डिंग्स, ठीक है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एफसी रोड है या जीएम रोड है, जो भी रोड है ये, ठीक है, जीएम रोड। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है वो स्कूल है, और लेट्स से यहाँ पर जो है वो कोई मॉल है। तो ये तो एडजेसेंट मतलब क्या? एकदम बाजू में। सो इज द हॉस्पिटल एंड द स्कूल एडजेसेंट? यस। इज द हॉस्पिटल एंड द मॉल नियर? इज द हॉस्पिटल एंड द मॉल नियर? But are they adjacent? Is the hospital and the mall adjacent? No. Adjacent मतलब immediate लग के, इसको बोलते हैं adjacent. This is what I mean by the word adjacent. So the hospital and the mall are on the same road, very near, but they are not adjacent. Is the school and the mall adjacent? School and the mall is adjacent. Yes. But the hospital and the mall are not adjacent. Correct? हाँ, तो अभी इसको समझो। तो वर्ड समझ में आ गया तो कभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। Let's say I open a login form. In that login form, I take the username and password. Okay. And I click on the login button. And enter the username password. Let's say username Alice है और password Alice123 है और कुछ password है। कुछ password. Now this login is which form? This is which form? Login or HTML, correct? From there, the request will come to where? To the login servlet. Will come where? Let's say assuming request is coming to
It is routing it to login servlet.java, correct? Now, is the login.html and login servlet adjacent? Yes, right? So, how will I read the username and password over here? How will I read the username and password over here? What is this? This is which object? So, if I want to read the name Alice over here in my login server, how will I read it? Guys, Shivam, request what? Okay. Okay, like this I will read it, and I can store it into a local variable. Let's say string username. Yes or no? Possible? Okay. And now if I display over here out.println, and if I want to display welcome Alice, how will I do that? Welcome, and then I will concatenate what? Username. Correct? So far so good, guys. Any problem till here now? Then I will make over here a button, the anchor tag. Okay, and the href of the anchor tag will be the URL pattern. Will be the, so what is this? What is this? URL pattern. Okay, and I will say go to shopping page. Go to which page? So when the user clicks on this, and whatever you will write has to be between what? In servlet, if you want to write any HTML, you have to write between what? In out.print. Okay. If you want to display this welcome in a h1 tags, what will you do? H1. Okay, welcome, concatenate this, and then again close the h1 also, right? So whatever HTML you have to write should be written using out.print, correct? In servlets. Guys, are you all there with me? Okay, so now as the user clicks on login, what will happen? It will go to login servlet. I'm not doing any authentication, okay? I'm just simply keeping it like this. So as you click on login, what will you see on the form, on the web page? Web page will look like something like this, right? In capital H1, it will show welcome Alice, and we'll make a hyperlink over here saying go to next page, correct? And this will be your hyperlink. Now when I click on go to next page, it will go to which URL pattern? And shop will take it to shop servlet, let's say. Shop will take it to which servlet? Shop. This routing we'll do in the web XML. Yes or no?
Now I had accepted the details in which form? Login form. Login.html and login.servlet was adjacent, right? So when they were adjacent, you could have read the value using request.getParameter. But now I want to show over here, thank you, Alice. She has done the shopping, and I want to now show her. I want to design this shop servlet in a way that it should display over here, thank you, Alice. Now, is the shop servlet and login.html adjacent? Yes, guys. Then how will the shop servlet read the data which was inserted in login.html? So for this, we called as session management. What we call? What is the topic? Session management in servlets. So you can read the data onto the third file, fourth file. Okay. So once you accept the data at one place, then in the entire application you can read it anywhere. So let's say after shop servlet, she want to make the payment. Then I will go to which? Payment servlet, right? These are all Java files. So session management means once you accept the data at one place, you can access it at all places. At all places you can access it. Okay. Okay. So here you can say Alice payment details. All I can carry on. So for to achieve this, we have what topic in servlets? Session management. And you can do this using four ways. First is URL rewriting. What we can do? Second is hidden fields. Third is your cookie. And fourth is your HTTP session. So these are the different four ways by which you can do your session management. Okay. So let's try to cover up examples of all the four fields and see. Okay. Whenever I'll be needing assistance, I'll be flipping to Google for help. Now, what do you all see on the screen, guys? Okay, I'll share my screen. I'll share the entire screen. Now, what do you see on the screen, guys? Yes, Eclipse. Okay. So now let's try the four options. Okay. So let's go to SRC and I'll make a login form. So login form already we have, but still I'll design a new one so that there is no confusion whatsoever. So I copy this and I say login new. And I will name my views always as kebab case. Okay. We'll say username, password, text. Okay. And I'll go to action. So I'll go to new login. Or I'll go to login, which is the first way of session management. Which is the first way of session management, guys? URL rewriting. So we'll go and we'll go to login
URL rewriting. Okay, so this is my action method. I'll go with get now. Okay, I'll go with the standard get method. So this should be there. So let's go to the web app, web INF, web XML, and let's take a servlet and servlet mapping. Who can remember the URL? Okay, and we'll route it to URL rewriting, and we'll go to URL rewriting. Okay, this login will go to, I'm saying URL rewriting, and URL rewriting I will route it to the login servlet, right? So I'll say login URL servlet, because we already have a login servlet previously. So where will this route to now? When I click on submit, it will route to which servlet now? Tell me, guys. Is this servlet there? Created. ये चल टाइम लेता है मेरे पास बनाने के लिए. So done. Now what should we do over here now? I want to read the. I'll stop my server. Okay, I don't want it on right now. Stop it. So I'll go to the do get, and whatever task we do for a login servlet, I'll do that. Correct. And now what do I want to write over here? Welcome. So how will I write this? How will I write this message, guys? Tell me. Am I audible to you all? So everything what you write in the servlet should be within out.print. So even the H1 should be in out.print. Welcome. And I will concatenate that with a variable. So variable will go outside. And then again I need to close the H1 tag also, right? Okay, this is done. Then next, what do I need to do for URL rewriting? Am I audible to you all? ठीक है. तो अब जो है मुझे सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स उठाना है. URL rewriting, rewriting in servlet. ठीक है. या वाटी पॉइंट से ले लेते हैं. तो वो यहाँ पर आ गया. ठीक है. और फिर हम लोग को यहाँ ये भेज सकते हैं. So now once I say welcome, I want a hyperlink, correct? I want a hyperlink, and I will say what? Go to which page? Go to shopping page.
ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, एचरेफ ये किसको हिट करेगा, ये किसको हिट करेगा, ये एचरेफ क्या होता है, यूआरएल। तो एक यूआरएल होगा किस नाम से, तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर बोलो, शॉप नाम से क्या होगा हमेशा उधर, यूआरएल। तो वो कहाँ जाएगा, शॉपिंग पे, ठीक है। ये हम दे देंगे यूआरएल शॉपिंग, हम लोग उससे कर रहे हैं ना, यूआरएल से कर रहे हैं, तो यूआरएल शॉपिंग कर दिया, और फिर इसको कार आउट कर देंगे, यूआरएल शॉपिंग सर्वलेट, करेक्ट। So I should make a servlet now. By what name? By what name? Okay. Now, if you observe over here now, I displayed welcome Alice. Now I am passing the Alice as what parameter? If you observe get के अंदर ना, get के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद सारे पैरामीटर्स ज्वाइन होके जाते हैं। आपने अगर कभी भी गेट किया होगा, लेट मी शो वाला एग्जांपल, जैसे आपने ऐड टू नंबर्स किया था, ठीक है, ये ऐड टू नंबर्स, इसको गेट करते, ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं। और वेलकम लैंडिंग फाइल कौन सा है, इसको लैंडिंग फाइल कर देते, कौन सा, एड डॉट एच टी एम, ठीक है। कंसोल को साफ करो पूरा, सर्वर सब बंद है, सर्वर बंद है, कंसोल को भी क्लियर कर दो। I'm clearing this console. So if I run this application now, we'll start up with which file? No, we'll start up with which one? This is a welcome file. Add is a startup, no? And who's saying login? अभी जो मुझे आपको बताना है कॉन्सेप्ट वो ये है, देखो। So is my browser screen visible to you all? Yes, sir. अब मैं कौन से दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, 18 और 49. अब अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड यूज करता, पासवर्ड, तो क्या दिखाता आपको वो, पर नंबर्स क्या है, बिहाइंड द सीन नंबर क्या है, अगर इनपुट टाइप इस पासवर्ड यूज करता मैं इधर, इनपुट टाइप इस पासवर्ड यूज करता, तो क्या दिखता था आपको, would it show you 18 and 45 or would it show you asterisk? I save again, other server restarted, let it restart. So now if I go and refresh this, क्या एंटर किया है मैंने, बोलो, हाँ, मैंने एंटर किया है 18 और 45, क्या एंटर किया है, 18 और 45. पर आपको दिख रहा है, No.
जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो दिखेगा, दिख रहा है ऊपर। Yes, sir. तो क्या होता है वो जो गेट है ना, गेट वो यूआरएल से भेजता है। तो शिवांजलि अपना यूआरएल पैटर्न था ना, उसके बाद में जो भी भेज रहा है वो क्वेश्चन मार्क के बाद। ठीक है, इसको डाइसेक्ट करता हूं मैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ये वेब डेवलपमेंट समझ में आए। इज माय स्क्रीन विजिबल टू योर नोटपैड स्क्रीन? Yes, sir. तो क्या किया उसने, ये यूआरएल पैटर्न है शिवांजलि, है ना। उसके बाद ये तीन चीजें भेज रहा है। तो T1 क्या हो गया, पैरामीटर का नाम है ना। what Yes. to read 18, what will I do on the servlet? Get parameter, T1. and to read 45, what will I do? Parameter T2. तो वो क्या करता है, गेट क्या करता है, उनको यूआरएल में कॉन्कैट करके भेजता है। तो इवन दो यू फील कि मैंने सिक्योरिटी अप्लाई कर दिया है, वो स्टिल विजिबल रहते हैं यूआरएल में, ऐसा। ठीक है, तो वही स्टंट मैं यहां कर रहा हूं। तो आई एम हिटिंग टू विच यूआरएल, Shop. शॉप। और क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर नेम आई एम पासिंग, Unit. यू नेम। और वैल्यू क्या है उसका। Username. तो जब अभी शॉप को जाएगा तो शॉप कहाँ राउट करेगा, शॉप कहाँ राउट करेगा अभी। अब यूआरएल शॉपिंग सर्वलेट पे मुझे रीड करना है एलिस। तो मैं क्या करूंगा, पैरामीटर का नाम क्या है, पैरामीटर का नाम क्या है, पैरामीटर का नाम क्या है गाइस, Unit. यू नेम है। अब ठीक है, बस वही काम करना है, कॉपी किया और यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले बोलो। जो वेलकम था वो थैंक यू कैसे करेंगे, जो वेलकम था उसको थैंक यू कैसे दिखाएंगे बोलो। यहां पर पैरामीटर क्या होगा, T1 का यू नेम, Unit. यू नेम। ओके, अब अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं और कर दूं जेड कर दूं, क्या कर दूं, या 3 बार जेड कर दूं, अभी क्या होगा, गेट पैरामीटर क्या, और वो कौन से वेरिएबल में आ गया, यूजर नेम में। और क्या बोलेंगे, थैंक यू। आया समझ में एंड टू एंड पूरा। Yes, sir. Yes. अब मैंने सेव करके मैं स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे नया फाइल खोलना है ना, स्टॉप कर रहा हूं, उसको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं रन कैसे करूंगा बोलो, कौन से फाइल से, लॉग इन न्यू से। ठीक है, रन करता हूं, रन ऑन सर्वर। स्क्रीन विजिबल नाउ, यस और नो। मैंने एंटर किया एलिस, एनी पासवर्ड, ये पासवर्ड तो चेक हो नहीं रहा। तो लॉग इन, तो क्या आया, ये कहां से रीड किया उसने, गेट पैरामीटर T1 से, क्योंकि वो एडजेसेंट था, है ना। फिर क्लिक किया गो टू शॉपिंग पेज, और क्या दिखाया उसने, थैंक यू एलिस। ये एलिस का से रीड किया उसने, Unit. यहां से ना, कहां से रीड किया उसने, यहां से, है ना। तो पैरामीटर का नाम यू नेम है क्या, हम जो भी लिखेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक वे तो ये था। ओके, दूसरा वे है हिडन फील्ड। दूसरा वे क्या है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसी लॉगिन न्यू को ही यूज कर रहा हूं, और लॉगिन को हम भेज रहे हैं हिडन को। क्या भेज रहे हैं अभी, एक्शन क्या है,
लॉग इन हिडन। अब क्या करना पड़ेगा? तो ये वाला समझ में आ गया, यूआरएल। अब दूसरा वाला करते, हिडन फील्ड। तो किसको राउट किया अपन ने? तो अभी यहाँ ये पूरा कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। तो लॉगिन न्यू पे लॉगिन हो जाए, लॉगिन हिडन। लॉगिन हिडन को भेजा है तो भेज देंगे। आ गया। ओके। यूआरएल रीराइटिंग हुआ था ना ये, शॉप। ये अभी कॉपी किया ना मैंने। अब ठीक है, चलो। क्या नाम है इसका? लॉगिन न्यू। ओके। अब मैं ये जो लॉगिन वाला जो है ना सर्वलेट, ये कॉपी करता हूँ। ठीक है। और कहाँ आउट कर रहे हैं इसको अभी हम लोग? बोलते हो मेरे साथ में ताकि मैं लगे तुम लोग बैठे हो। लॉगिन हिडन। ठीक है। तो हम जाएंगे फिर हिडन फील्ड में। किसमें जाएंगे? हिडन फील्ड। और हिडन फील्ड्स को कहाँ राउट कर देंगे? बोलो। हिडन फील्ड सर्वलेट है ना। लॉगिन हिडन को किया हिडन फील्ड से, हिडन फील्ड्स को राउट किया हिडन फील्ड सर्वलेट पे। ओके, लॉगिन हो रहा है ना वो, तो उसका नाम लॉगिन दे देंगे फिर आगे। लॉगिन हिडन फील्ड सर्वलेट। अब नया बनाएंगे। तब मैंने बंद कर चुका हूँ ना, इसको बंद कर दूंगा मैं ताकि फास्टर हो जाए। कंसोल क्लियर कर दूंगा। राइट क्लिक, न्यू, सर्वलेट। क्लास का नाम, पैकेज का नाम नहीं, ठीक है। ये सेम टू सेम रहेगा, ये काम सेम टू सेम रहेगा। तो ये काम सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। अब हम लोग है ना, एक बटन, वी कैन मेक अ स्मॉल फॉर्म ओवर हियर ऑल्सो, लाइक हाउ वी मेड अ फॉर्म ओवर हियर। आई एम showing you all the various ways how we had made a form over here. We can similarly make a form over here also. तो आप हाइपरलिंक से भी जा सकते हो, और आप चाहो तो एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। बट अभी करना क्या पड़ेगा आपने को, बोलो। जो भी करना है किस में करना पड़ेगा? ओके, अभी देखो ये डबल कोड इससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो जैसे यहाँ सिंगल कोड देते जाओ ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो सिंगल कोट्स दे दो, वरना डबल कोड से कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज, इनपुट टाइप हिडन भी आता है, मालूम तुम लोग को? क्या मीनिंग है इसका? मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा पर नजर नहीं आएगा। वो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा पर उसका विजिबिलिटी नजर नहीं आएगा। और उसका मैं कुछ नाम दे दूंगा, TX। और उसका वैल्यू फिर मैं सेट कर दूंगा मेरा वेरिएबल का नाम।
डबल कोट से इसके सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ। और कहाँ जाने वाले हम लोग इसमें? गो टू शॉपिंग पेज, वो लिख देंगे। ओके, तो ऐसा हमने एक फॉर्म बना दिया अभी। सो क्या करेंगे, एक फॉर्म बन गया जो किस पे जाएगा? शॉप। ठीक है, अब एज वी ऑलरेडी हैव अ शॉप, विल मेक अ न्यू शॉप, शॉप हिडन फील्ड। तो कौन से जाएगा वो एक्शन पे? शॉप हिडन फील्ड। और जो मैंने यूजर नेम ले लिया है यहाँ पर, मैंने एक इनपुट टाइप बनाया हिडन, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स है पर नजर नहीं आएगा, उसका वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे। So let me just check the syntax of how it is done. Okay, I just need to check the syntax. This is the value it is telling. The entire value attribute. ये जो वैल्यू है सिंगल कोट रहता है, तो यहाँ पर डाल दो यूजर। So we had given like this, no? I had kept it blank like this, value blank. अब उसका तरीका क्या है लिखने का? क्या बता रहा है वो? डबल कोट और कॉन्कैट कर दो। क्या बोल रहा है वो? डबल कोट कॉन्कैट डबल कोट, ऐसा कर रहा है वो। दोनों तरफ से कॉन्कैट कर दो। डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट क्लोज, and now give the variable name you want to give. So what is the variable name? Username. So what will it do is, when I click on this go to shopping page, it will go to this action shop hidden field. So let's create this now. तो ये जो शॉप वाला था ना, अभी अभी लेते हैं इसको। ये जो शॉप वाला है अभी इसको लेते हैं। ओके, तो कहाँ जा रहा है वो? शॉप हिडन फील्ड। तो क्या करेंगे आप लोग? हिडन फील्ड शॉपिंग, और हिडन फील्ड शॉपिंग से चले जाएंगे हिडन फील्ड शॉपिंग सर्वलेट। तो कर आउट कर देगा वो। बोलो, न्यू सर्वलेट। Okay, and now we will come here, and like we are reading normally, शॉपिंग सर्वलेट कहाँ गया दूसरा? बस। Now we will read from which parameter? So now if you see, we have passed a form, in that we have a text box type, but उसको hidden है, तो उसका type नाम क्या है उसका? Yes guys, tx। तो यहाँ पर क्या रीड करेंगे? URL कहाँ गया है? हिडन फील्ड, login hidden field, there is a shopping. So we will just come here and we will read it from tx, that's it। हो गया, खेल खत्म। तो नाउ लेट्स से लॉगिन का कर रहा है, अभी लॉगिन हिडन फील्ड को आउट कर रहा है, ठीक है? ताकि
समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ हिडन फील्ड वेलकम एलिस, ये लिख रहा हूँ। और फिर थैंक यू फ्रॉम हिडन फील्ड्स टू एलिस। ठीक है, ये अपन लिख देते मैसेज, ताकि मालूम पड़े कि ये वाला नहीं। देखो लॉगिन जो यूआरएल का है उसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ वेलकम लिखा है, इसमें एक्स्ट्रा लिखा है, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो रन हो रहा है। तो लेट्स रन इट नाउ। लॉगिन तो सेम ही है, कंसोल क्लियर है, सर्वर भी स्टॉप्ड है। लेट्स राइट क्लिक एंड रन। Okay, is my screen visible to you all guys? Yes, sir. So I enter Ben, I enter the random number 123, लॉगिन किया, क्या लिख के आया? यस। अब यहाँ पर एक फॉर्म बना है, जैसे यहाँ पर एक फॉर्म बना था ना लॉगिन पेज का, तो एक टेक्स्ट फील्ड है क्या नहीं इधर? है बट है बट विजिबल नहीं। उसका वैल्यू क्या है टेक्स्ट फील्ड का? बेन है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे शॉपिंग पेज पे, तो जाएगा और बोलेगा टू बेन। आया समझ में? तो ऐसे हम लोग एडजेसेंट फॉर्म से आगे डेटा पास कर सकते हैं। अब तीसरा जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है तुम्हारा कुकी। ओके, कुकी को थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं सेशन को। तो सेशन का क्या काम रहता है? लॉगिन से लेके लॉग आउट तक, लास्ट में पेमेंट के बाद में क्या आएगा? पेमेंट के बाद में क्या करोगे आप? लॉग आउट करेंगे। अगर लॉगिन से लेके लॉग आउट तक आपको कुछ डेटा रिमेंबर करना है आपके एप्लीकेशन में, तो सर्वलेट ने एक डायनेमिक एरे दिया है। द रीजन आई एम कॉलिंग इट डायनेमिक इज, उसका लेंथ भी फिक्स नहीं है, उसके इंडेक्स भी फिक्स नहीं है। आप चाहो तो जितने इंडेक्स डाल सकते हो, आप चाहो तो जितना लेंथ उसका बढ़ा सकते हो, और इंडेक्स भी आपके ऊपर है, आपको क्या नाम देना है इंडेक्स का। आपको इंडेक्स का नाम ए देना है तो ए दो, एप्पल देना है तो एप्पल दो, आपको जो इंडेक्स का नाम देना है आप दे सकते हैं। और वैल्यू शुड गो एज अ ऑब्जेक्ट, बट वैल्यू शुड गो एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए हम स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं, स्ट्रिंग। तो ये जो की रहेगा ना, की, ये तो स्ट्रिंग रहेगा, और जो उसका वैल्यू है एरे का, वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आप उसमें प्रिमिटिव नहीं डाल सकते, जैसे आपने 1 डाल दिया या 10 डाल दिया, आप वो नहीं डाल सकते। तो ये जो एरे है इसका नाम है HTTP सेशन का, ये ऑब्जेक्ट रहता है, ये क्लास है, इसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है HTTP सेशन। ठीक है, तो और ये आता है रिक्वेस्ट से, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और जैसे आप ट्रू लिखोगे इसके अंदर तो एक नया एरे बन जाएगा। ओके,